तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर ली थी। अब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 स्टार्ट करवाने से पहले एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो शीट का एक क्वेश्चन है। शीट में एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं, वो किसी सवाल का पार्ट है। तो आप हेडिंग बनाओगे, बेसिकली वो मैं आपको एक तरीके से ये समझ लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा, प्रैक्टिस एग्जांपल देने लगा। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ and predict hybridization as well as geometry of Si2O7 6 negative. Solve this question. Draw the structure and predict hybridization as well as geometry of SiO4 negative and Si2O7 6 negative. Solve this question. What is the geometry hybridization? Obviously, when I'm saying draw the structure, it means Lewis dot structure. Of course, Lewis dot structure. Predict hybridization as well as geometry. So SiO4 4 negative. You will say silicon ke around 4 electrons, each electron to be shared with O negative. So hybridization of silicon is sp3. Hybridization and geometry is tetrahedral. So approximately bond angle will be close to 109.5 degree. यही किया होगा. Now check what is the geometry and hybridization around each silicon in this. Geometry and hybridization around each silicon in the Si2O7 6 negative. Of course, again tetrahedral because दो सिलिकॉन है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते वक्त divide 3 oxygen for each and 1 oxygen make common between the two silicon. And negative charge to be present on every of terminal oxygen, and this common oxygen is called bridging oxygen. Of course, each silicon is sp3 hybridized, and geometry of each silicon, they are making it tetrahedral. This is one tetrahedral. This is another tetrahedral. अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करने वाला हूँ. This is one tetrahedral. This is another tetrahedral. When there is one oxygen which is common between the two silicate tetrahedral, one tetrahedral is called tetrahedra. When there are many tetrahedra, it's tetrahedron or tetrahedron. तो अगर एक से ज्यादा टेट्राहेड्रा है और उनमें एक ऑक्सीजन कॉमन हो गया, दिस इज सिलिकेट.
दिस इज सिलिकेट, क्योंकि दो सिलिकेट जुड़े हुए लाइक डाई सिलिकेट और दोनों में एक ऑक्सीजन कॉमन है, देन वी कॉल अ नेम पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट। तो अगर कभी आपसे कोई ये पूछे कि इन ए पायरोसिलिकेट हाउ मेनी ऑक्सीजन इज शेयर्ड बिटवीन द टू टेट्राहेड्रा, you will say between the two tetrahedra there is one oxygen which is common, और जो ऑक्सीजन कॉमन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन कॉमन है उसको दो बॉन्ड बनाए ईच सिलिकॉन के साथ। तो फिर मैं ये वर्ड यूज करूंगा, दिस इज वन टेट्राहेड्रा, दिस इज अनदर टेट्राहेड्रा, सो दिस कॉमन ऑक्सीजन which is shared between the two tetrahedra, it makes pyrosilicates. अगर मैं यहां पे बात करूं, suppose I'm talking of chain silicates. Chain silicates में there is a polymer or chain of silicates tetrahedra sharing its two oxygens with neighboring tetrahedra. Suppose अगर मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन के अराउंड मैं दो ऑक्सीजन ओ नेगेटिव के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, और सिलिकॉन के चार बॉन्ड पूरे करने के लिए मैंने इसके अराउंड ऑक्सीजन कनेक्ट किए, पर कुछ इस तरह से, लाइक दिस टेट्राहेड्रा। अगर मैं इस टेट्राहेड्रा की बात करूं, इसके चार ऑक्सीजन में से मैंने दो ऑक्सीजन शेयर कर दिए दूसरे टेट्राहेड्रा के साथ। इसी तरीके से यहां कोई ऑक्सीजन, इसी तरीके से आगे कोई सिलिकॉन, इट्स ए लॉन्ग चेन। सच चेन्स ऑफ सिलिकेट्स इज कॉल्ड एज चेन सिलिकेट्स। अगर एक टेट्राहेड्रा के दो ऑक्सीजन मैं शेयर करवा दूं, then we call it as chain silicates. और अगर मैंने दो टेट्राहेड्रा के एक ऑक्सीजन शेयर करवा दिया, we call it as pyrosilicates. So chain silicates और pyrosilicates में डिफरेंस क्या है? Difference is when the two tetrahedra share one oxygen, it's pyroform. When the two tetrahedra shares two oxygen, अगर मैं इस टेट्राहेड्रा की बात करूं, इसके दो ऑक्सीजन कॉमन, then we call it as chain silicates. अब अगर कोई आपसे ये पूछे what is the structure of Si3O9 6 negative, let's say Si4O12 8 negative, this kind of the molecules, they have a general formula in their polymeric structure, and the general formula is SiO3 N 2N minus. N is how many tetrahedras there. जब मैं टेट्राहेड्रा की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे काउंट करवा रहा हूं, ये देखो, दिस इज वन टेट्राहेड्रा, दिस ऑक्सीजन इज कॉमन फॉर दिस अनदर टेट्राहेड्रा, दिस इज अनदर कॉमन फॉर दिस टेट्राहेड्रा, like one tetrahedra, two tetrahedra, three tetrahedra, जितने टेट्राहेड्रा that is counted as number n, क्योंकि हर टेट्राहेड्रा में एक सिलिकॉन है. So if there are n tetrahedra, then we call it as its number of the silicon is number of tetrahedra. So if n is the number of silicon atom, n tetrahedra join with each other,
बट उनको कनेक्ट करने वाले कौन है? ऑक्सीजन। देन वी कॉल इट एज कि ये चेन सिलिकेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ n की वैल्यू 3 पुट कर दी, व्हाट विल बी दिस फॉर्मूला? अगर n की वैल्यू 3 पुट कर दो, SiO3 थ्राइस 2 into 3 6 नेगेटिव, तो यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव कैसे बनाए? दिस इज कॉल्ड ट्राइसिलिकेट्स। देन ड्रॉ such geometry, draw such structure for tetrasilicate in your copy. टेट्रासिलिकेट में 4 टेट्राहेड्रल, ड्रॉ करो, देखो क्या बनता है। हाउ विल यू कनेक्ट ऑल द 4 टेट्राहेड्रा? और मुझे बताना है कितनी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कितनी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। व्हेन आई एम सेइंग इट इज SiO3 N2N नेगेटिव एंड NH4 टेट्रासिलिकेट, तो टोटल आपके पास 12 ऑक्सीजन, 12 में से 8 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो देखो जो आपस में कनेक्ट कर रही है ऑक्सीजन, जो बॉन्डिंग दो टेट्राहेड्रा के बीच में जो कॉमन ऑक्सीजन आ रहा है, they will be neutral, right? So all the chain silicates, they have general formula, and when you keep the number of silicon atom like 1 2 3 4 5 6, this chain grows. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे let's say for example अगर मुझे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी, तो आई विल से दैट when two silicate tetrahedra are connected via only one common oxygen, we call it as pyrosilicate. सिलिकेट चाहे सिंपल सिलिकेट हो, चाहे पायरोसिलिकेट हो, चाहे चेन सिलिकेट हो, हर बार सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कंपाउंड की। There is another category cyclic silicates. Cyclic silicates also have general formula same like chain silicate, SiO3N 2N negative. Let us take an example. Suppose I am asking you draw the structure of Si6O18 12 negative. What is the value of N? If you compare this with this, what is the value of N? कितने tetrahedra connected? There are 6 tetrahedra required to be connected. So अगर मैं यहाँ पे 6 सिलिकेट टेट्राहेड्रा को कनेक्ट कैसे करने लगा हूं, ये देखो। Suppose one silicon, this is O negative, O, this is O negative, this is silicon, this is O, this is O negative, this is silicon, this is O, this is O negative, this is O, this is O negative, this is O, 1 2 3 4 5 6 like this. अब चेक करो मैंने यहाँ पे क्लोज रिंग बनाई,
अगर मैं एक टेट्राहेड्रल की बात करूं, इस टेट्राहेड्रल के कितने ऑक्सीजन कॉमन कर दिए मैंने? एक टेट्राहेड्रल के कितने ऑक्सीजन कॉमन किए? 2। इस टेट्राहेड्रल के देख लो 2 ऑक्सीजन कॉमन की। With the same general formula, compound can have either cyclic structure, compound can have either chain structure. So chain silicates, cyclic silicates, they have same general formula. They have comparable stability. कुछ खास एक्स्ट्रा फायदा नहीं है. They can be have comparable stability. और दूसरी चीज, जो चीज आपको पता होनी चाहिए, how many oxygen are shared between every 2 silicates tetrahedra? How many oxygens are shared between the 2? Every silicate tetrahedra has shared how many oxygen? 2 oxygen. Same with the chain silicate. So अगर suppose करो, some student is saying there is a voice problem. Is it correct? Voice cracking? Okay. Is everything fine or I need to reconnect it? All good? Okay. चलो देखो, एक स्टूडेंट है आई नाम का, आई डॉट, माइक इज अनोइंग नॉइसेस. I just want to make sure is everything fine or I should reconnect it because ऐसे मेरा फ्लो टूटेगा. ओके ठीक है. तो टेट्राहेड्रा में, सिलिकेट टेट्राहेड्रा में अगर एक ऑक्सीजन शेयर किया तो पायरो, अगर 2 शेयर किए तो वो चेन भी हो सकता है, वो साइक्लिक भी हो सकता है. अब हमारे पास एक तरीका है, दूसरा तरीका इस टेट्राहेड्रा को ड्रॉ करने का, इसको रिप्रेजेंट करने का. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो टेट्राहेड्रा है, क्या ये टेट्राहेड्रा 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है? व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल. सो दिस इज कंप्लीटली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि एवरी टेट्राहेड्रा इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. अगर इसको कोई ये कह दे कॉपी के पेज के प्लेन में या बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ करने का कोई तरीका बताओ, तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है. दैट इज इट 2D प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना. अब वो सीखना है 2D प्रोजेक्शन कैसे दिखाना. सपोज projection for representing silicates. अगर मैंने ऑर्थोसिलिकेट की बात की, तो अब इस टेट्राहेड्रल को दिखाना कैसे है? सिलिकॉन इज शोन लाइक ब्लैक सर्कल, डॉट, स्मॉल डॉट. इसके 3 ऑक्सीजन 1 2 3 दे आर शोन लाइक दिस 1 2 3. और ये जो 4th ऑक्सीजन है, दिस इज शोन लाइक बिग सर्कल. दिस इज द वे टू शो इट. तो आपको जब भी कभी एग्जाम में ऐसी ड्राइंग दिखेगी, वो आपको ये ना दिखा के ये दिखाएंगे, तो आपने खुद समझना है. ब्लैक डॉटेड इज सिलिकॉन, सराउंडिंग में दिस इज ऑक्सीजन, this is oxygen, this is oxygen, and this is again oxygen. Each oxygen is carrying negative charge, minus 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 minus. तो अगर मैंने पायरोसिलिकेट्स को ड्रॉ करना होगा like this, this is pyroSilicates. अब इनको 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन में कैसे दिखाना है? दिस इज 1 टेट्राहेड्रा, दिस इज अनदर टेट्राहेड्रा. हाउ विल यू ड्रॉ? सिलिकॉन की सराउंडिंग में एक ऑक्सीजन, 2 3 और ये चौथा ऑक्सीजन. फॉर दिस सिलिकॉन 1 2
3 4, तो 1 2 3 4, 1 ऑक्सीजन इज कॉमन, तो इसी के साथ सेकंड सिलिकॉन, फिर इस सिलिकॉन के साथ 1 ऑक्सीजन विच इज कॉमन बिटवीन द टू सिलिकॉन, 1 2 3 and 4. This is how you will show pyroसिलिकेट in its two-dimensional projection form. अब आप यहां कनेक्ट करके दिखाओगे, इट्स लाइक ए टेट्राहेड्रा। अब इस ड्राइंग के हिसाब से बताओ कौन सा ऑक्सीजन है जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे इस ड्राइंग में किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं था जो कॉमन था? तो यहाँ पे दो सिलिकॉन के बीच में ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाना, सब पे नेगेटिव पुट कर दो, नेगेटिव। तो आपको ड्राइंग्स ये दिखेगी कि सिलिकेट टेट्राहेड्रा की, पायरोसिलिकेट की, आपको वो ये फॉर्म दिखाएंगे। अब यही काम मैं यहां करने लगा हूं चेन सिलिकेट में। अब चेन सिलिकेट में क्या करना है? 1 टेट्राहेड्रा, सेकंड टेट्राहेड्रा, थर्ड टेट्राहेड्रा, ऑल आर कनेक्टेड, और हर टेट्राहेड्रा की 2 ऑक्सीजन शेयर करनी है। हाउ विल यू ड्रॉ? लाइक दिस, सिलिकॉन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, दिस इज फोर्थ, दिस इज 1 tetrahedra. Another tetrahedra, this is now common, 1 silicon, second oxygen, first oxygen, third oxygen, fourth oxygen. Again another, silicon, oxygen, 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 this is trisilicate. बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि ये ऑक्सीजन किसी से शेयर होगा, ये ऑक्सीजन किसी से शेयर होगा, बाय डिफॉल्ट ये मानना है। जैसे इस टेट्राहेड्रल में आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन इस टेट्राहेड्रल का पार्ट भी है और इस टेट्राहेड्रल का पार्ट भी है। ये ऑक्सीजन इस टेट्राहेड्रल का पार्ट तो है पर नेबरिंग टेट्राहेड्रल का पार्ट भी है। सो एवरी टेट्राहेड्रल के 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे फोर्थ ऑक्सीजन दिखाना है आपने, वो लाइक सर्कल। तो अब अगर मुझे नेगेटिव चार्ज लगाना है तो किस किस पे लगाऊंगा? इस पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, ये दोनों शेयर्ड हो जाएंगे किसी न किसी के साथ, नो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, नो नेगेटिव नो नेगेटिव। अब अपनी कॉपी में मुझे टेट्रासिलिकेट, आप ट्राई करो टेट्रासिलिकेट ड्रॉ करके दो इसी तरीके से 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन में। टेट्रासिलिकेट इज Si4O12 8-, यानी कि SiO3 4 2 into 4 नेगेटिव। चेक कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल ज्वाइन करने। सो दिस इज केमिकल बॉन्डिंग 2 शीट के क्वेश्चंस हैं ये, इट्स नॉट केमिकल बॉन्डिंग 3। ड्रॉन सिंपल काम है यार, इसमें ज्यादा कोई टफ काम है ही नहीं। ओके, क्या किया होगा? इसके साथ एक और टेट्राहेड्रल ज्वाइन कर दिया होगा। Fourth oxygen, this is shared with someone, this is negative and this oxygen is carrying negative, rest all will remain same। इसी को अगर मुझे साइक्लिक फॉर्म में दिखाना होता, अगर कोई मुझे ये कह दे Si6O18 12 नेगेटिव, यानी कि टोटल 18 ऑक्सीजन में से 12 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है।
नाउ हाउ आई विल ड्रॉ, डेफिनेशन क्या है साइक्लिक सिलिकेट की, हर टेट्राहेड्रल के दो ऑक्सीजन शेयर करने नेबरिंग टेट्राहेड्रा के साथ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक दिस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 तीन, एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज वन टेट्राहेड्रा। अगेन सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, another tetrahedra. Now again, this is oxygen, another silicon, oxygen, oxygen, fourth oxygen, another tetrahedra. चेक करो एक टेट्राहेड्रा के मैंने कितने ऑक्सीजन शेयर करवाए। वन टेट्राहेड्रा हैज हाउ मेनी ऑक्सीजन शेयर्ड with the neighboring tetrahedra? Two. So it's a cyclic silicate. Now I'm going to form. Again, this is again silicon, oxygen, oxygen, another oxygen, silicon, oxygen, oxygen, fourth oxygen, another tetrahedra. This is silicon, this is its oxygen, this is oxygen, tetrahedra. So it is cyclic silicate, और हर ऑक्सीजन जो कॉमन नहीं है, जो शेयर्ड नहीं है, will carry negative charge. So in every tetrahedra there is one this oxygen, another this oxygen, which is carrying the negative charge. Negative, 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 again carrying negative. So total 12 oxygen will carry negative charge. This is cyclic silicate. And every silicon is sp3 hybridized. Every silicon has tetrahedral geometry. And this is its planar representation, two-dimensional representation. But reality में every this structural unit is tetrahedral, so it's a three-dimensional. But this is the way how it is projected in a plane. I hope this is all clear about the tetrahedras and all clear about cyclic silicate, chain silicate, and pyrosilicates. सपोज मैंने अगर एक काम ऐसे कर दिया, इस टेट्राहेड्रा के एक, दो, तीन, चार में से मैंने तीन ऑक्सीजन शेयर कर दिए। लाइक ये देखो मैं क्या करने लगा हूं, नेगेटिव चार्ज हटाया, यहां पर फिर से सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लाइक दिस, फिर से मैंने शेयरिंग कर दी, नेगेटिव नेगेटिव, फिर से मैंने इसके साथ आगे सिलिकॉन, नेगेटिव हटाया, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, शेयरिंग करवा दी, और ऐसा करते करते मैंने फिर से एक स्टार बनाया। और इस टेट्राहेड्रल के भी हर टेट्राहेड्रल के तीन ऑक्सीजन शेयर करा दिए, लाइक यहां से भी ऊपर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नेगेटिव ओनली वन, एंड दे आर नाउ शेयर्ड। तो पूरा नेटवर्क बनता जा रहा है, एक साइकिल नहीं है, इधर भी साइकिल, ऊपर भी साइकिल, नीचे भी साइकिल, राइट लेफ्ट सब तरफ साइकिल ही साइकिल। देन वी कॉल इट एज शीट सिलिकेट, वी कॉल इट एज शीट सिलिकेट। और शीट सिलिकेट में हर टेट्राहेड्रा के कितने ऑक्सीजन कॉमन होते जा रहे हैं, 1 2 3। इट्स लाइक शीट सिलिकेट व्हेन ईच टेट्राहेड्रा will share its 3 oxygen with the neighboring tetrahedra. This is called sheet silicate. When each tetrahedra shares 3 of its oxygen with
neighboring tetrahedra. So this is a polymeric structure, never ending, unending structure. तो आपने चेन सिलिकेट देखा, साइक्लिक सिलिकेट देखा, अब शीट सिलिकेट भी देख लिया. अब व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? ये जो फोर्थ ऑक्सीजन है, एक्चुअली ये फोर्थ ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा का ऐसा रूप है. सेंटर में सिलिकॉन, 4 ऑक्सीजन. यहां से भी मैंने एक ऑक्सीजन के थ्रू फिर से एक टेट्राहेड्रा कनेक्ट कर दिया, फिर से एक टेट्राहेड्रा कनेक्ट कर दिया. यानी कि अगर मैंने इस पूरी जो दिख रही है ना आपको, ये पूरी शीट, इसको अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ध्यान से देखना, समझना क्या करने लगा हूं. सपोज ये 2D प्रोजेक्शन दिखाया मैंने, शीट, दिस इज अनदर शीट, पर इस शीट और इस शीट के बीच में भी कौन जुड़ा होगा? कौन होगा बीच में, एक शीट और इस शीट के बीच में? हु इज कनेक्टिंग टू देम? ये फोर्थ ऑक्सीजन, ये वाला, ये भी शेयर करा दिया. लाइक दिस इज वन शीट, अनदर शीट, ऊपर शीट, नीचे शीट, and bundles of the sheets stacking together. 3-dimensional network silicate. 3-dimensional network silicate. और अब मुझे एक बात बताओ, जब फोर्थ ऑक्सीजन भी किसी से शेयर करेगा, फोर्थ ऑक्सीजन भी जब किसी से शेयर करेगा, तो क्या सिलिकॉन के अराउंड चारों ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गई? हर सिलिकॉन के अराउंड चारों ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गई. बेसिकली वो कौन था? वो था SiO2n. याद करो, SiO2 का स्ट्रक्चर हमने किया था. CO2 इज ए गैस, SiO2 इज ए सॉलिड, और वो एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन आ रहे थे, वो फिर आगे सिलिकॉन से कनेक्ट हो रहा था, फिर आगे फिर 4 ऑक्सीजन आ रहे थे. सो दैट इज बेसिकली SiO2, जिसको हम रेत बोल दें या ग्लास, शीशा बोल दें. सो बेसिकली अगर मैं ये चौथा ऑक्सीजन भी शेयर करके पूरी शीट बना दूं, तो वन शीट, इसके ऊपर एक और शीट, और शीट, और शीट करके पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में ना वो ऐसे आपको डराने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, Si8OX 2X नेगेटिव, और बोल देते हैं इफ इट इज अ चेन सिलिकेट व्हाट इज X. तो आप क्या बताओगे? इफ इट इज अ चेन सिलिकेट व्हाट इज X? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? 24. 24. तो फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा, आउट ऑफ X ऑक्सीजन हाउ मेनी ऑक्सीजन आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज? आउट ऑफ X हाउ मेनी ऑक्सीजन आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज? तो नेचुरली आप बोलोगे हम जी इसका फॉर्मूला को SiO3n 2n- से इक्वेट करेंगे और बोल देंगे कि n नंबर तो 8 है, तो ऑक्सीजन हो गए टोटल 24, और टोटल चार्ज अपने पास कितना बन जाएगा? 16 नेगेटिव. तो 24 में से 16 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो कितनी ऑक्सीजन आपसे पूछेंगे? वो शेयर्ड है. शेयरिंग वाली ऑक्सीजन कितनी है? 8 रिमेनिंग. ओके, ये बताना था आपको. इट इज X एंड इट इज Y नेगेटिव, ऐसे पूछा मैंने. दिस इज X, दिस इज Y नेगेटिव. तो X इज 3n एंड टोटल चार्ज इज 2n नेगेटिव. सो आपके केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 की शीट में एक ये क्वेश्चन था जो मुझे बताना था. So now going to start chemical bonding part 3.
तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 में जो अपना सबसे पहले टॉपिक है दैट इज बैक बॉन्डिंग। लेकिन बैक बॉन्डिंग से पहले मैं आपको 2 एग्जांपल रिकॉल करवाना चाहता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, तो आंसर इज नो हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज ऑफ ड्रैगोज रूल। तो अब मेरा आपसे सवाल है, ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? तो आप बोलोगे फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और आप ये कह दोगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह दोगे कि px py pz ने मिलके 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बना है ये प्योर p ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल से हुई। तो ये जो बॉन्ड बने ये प्योर 3p ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस का हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है और ये लोन पेयर 3s ऑर्बिटल में है। और अगर मैं H2S की बात करूं तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। तो 3p4 में सल्फर के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन सल्फर कर नहीं रहा। तो यहां पे मैं कह दूंगा जो भी बॉन्डिंग हो रही है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग विद 3p ऑर्बिटल से हो रही है। तो अगर मैंने ये नाम दे दिया 3px 3py 3pz, तो ये जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन 3s एंड 3px। कहने का मतलब ये अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो और उस लोन पेयर को आप ये कह दो कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, तो आप कहोगे यस ऐसा तब हो सकता है जब सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में जाने से मना कर दे। यानी कि अगर कोई मेरे से ये कह दे कि NH3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में सिग्मा की तरह काउंट किया है। लेकिन यहां आप लोन पेयर को सिग्मा की तरह अब स्टेरिक नंबर में काउंट ना करते हुए सीधा बोलोगे लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन ईदर प्योर एस और इन प्योर पी ऑर्बिटल। तो अगर कभी भी कोई मेरे से ये पूछे क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जब किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हो और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ना करे, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना हो, देन आई विल से यस दिस इज द केस व्हेन वी टॉक ऑफ ड्रैगन रूल। और अभी तक मैंने आपको हमेशा ये सिखाया कि जब भी किसी एटम के ऊपर लोन पेयर होगा आप उसे स्टेरिक नंबर में सिग्मा की तरह काउंट करना। तो मैं कह दूंगा कि यहां नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट कि वाई फॉस्फोरस ने क्यों हाइब्रिडाइजेशन यहां नहीं की, क्यों सल्फर ने नहीं की। फॉर दैट चेक द प्रीवियस लेक्चर बेस्ड ऑन द बेंड्स रूल एंड ड्रैगोज रूल। तो जिनको भी यहाँ पे कंफ्यूजन है यार यहाँ क्यों नहीं हाइब्रिडाइजेशन हो, चेक योर लेक्चर। तो PH3 में फॉस्फोरस की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp3 है और लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब क्वेश्चन ये, अगर मैं आपको ये कह दूं लेट्स से आई एम टॉकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
and I'm talking of कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2? व्हाट इज विल बी योर आंसर? sp? ओके। अगर मैं ये कह दूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन? आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की होती है, इसकी थोड़े ना है। हम हाइब्रिडाइजेशन की तो सेंट्रल एटम की बात करते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करूंगा। तो अगर मैंने पूछा कि ये लोन पेयर कहाँ है, ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल में है? तो आप कहोगे नहीं, इट इज प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल। इट्स इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां देखो, इससे पहले एक और एग्जांपल, H3O प्लस की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई इसका लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर बनाए तो वो ये कहेगा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर 2 वाटर और ये एक H प्लस। तो अब मैं H प्लस के साथ लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दूं, यही बनाओगे H3O प्लस में कि मैंने लोन पेयर को H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भेज दिया। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, इट्स ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा या पाई होगा? इट्स अ सिंगल बॉन्ड, यू विल काउंट इट लाइक अ सिग्मा बॉन्ड और इट्स अ पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड। अगर इस लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना था, या इस लोन पेयर को ये कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो फिर इस लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और वैसे भी यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आप कहोगे कि ये लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है, और ये जो बॉन्ड बना है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से बना है। और ये कोई नया नहीं, हमने ऑर्बिटल डायग्राम बहुत सारे बनाए थे हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे हमने इसका डिटेल में बात की थी कि भाई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर है, और अगर अब ये सिंगल बॉन्ड बनेगा तो H प्लस का एम्प्टी ऑर्बिटल 1s sp3 ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब जब जब लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो, तो उस लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा। बट नाउ लुक ओवर हियर, अगर कोई मुझे यहां बात करे कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑब्वियसली नहीं, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है इस वक्त, 1 2 3 4 5 6, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर ले? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर ले। अब अगर कोई ये कह दे कि ये सिग्मा बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था, तो तीसरा बॉन्ड जो बन रहा है, जब दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा तो कितने पाई? 2 पाई। तो ऐसे केस में ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड होगा, ना कि सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मैंने ये इसलिए आपको रिवाइज करवाया कि जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी पाई बॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब आप ये जानते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन देके, फॉर्मल चार्ज लगा के। अगर आप उस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बना दो यहाँ पे, तो आपको ये प्योर ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा। तो भैया ये जो तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पाई बॉन्ड में दिखाया ना, ये जो तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पाई बॉन्ड में दिखाया, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। whenever coordinate bond will get the shape of pi bond, we use the word this is a back bonding.
बैक बॉन्डिंग वर्ड आप तब यूज करोगे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड बन के आपके सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल। यहां चेक करो, क्या यहां किसी को किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत है? क्या यहां किसी को किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत है? बिल्कुल पड़ रही है जरूरत। कौन इस वक्त धर्म संकट में? किसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की? बोरॉन को। तो बोरॉन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। तो फ्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर ले। पर अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो ये सिग्मा होगा या पाई होगा? सिग्मा तो पहले से बन चुका है। डबल बॉन्ड में ये एक सिग्मा, तो अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या रूप लेना पड़ेगा? पाई का। तो अब मैं अगर इस कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं, इसका इलेक्ट्रॉन उठा के बोरॉन के ऊपर डाल दूं, तो आप कहोगे फ्लोरीन पे 2 लोन पेयर, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन पे नेगेटिव। तो ये फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, यहां 2 लोन पेयर। अब आप मुझे ये चीज बताओ, कोऑर्डिनेट को जब आपने कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट किया तो यहां डबल बॉन्ड आप देख सकते हो, विच इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई। देन आई विल यूज द वर्ड फ्लोरीन हैज मेड बैक बॉन्डिंग विद द बोरॉन। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आई कि जब किसी एटम का लोन पेयर किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा और वो बॉन्ड रियलिटी में पाई बॉन्ड है, देन वी यूज द टर्मिनोलॉजी बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग क्योंकि पाई बॉन्डिंग है, और आपने 2 तरह की पाई बॉन्डिंग पढ़ी है, पी पाई डी पाई। तो बैक बॉन्डिंग में भी ये 2 क्लासिफिकेशन होगी, पी पाई टाइप पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई टाइप पाई बॉन्ड। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पाई बॉन्ड आपने इस फ्लोरीन से बनवाया, तो क्या कोई दूसरा बच्चा इस फ्लोरीन से बनवा सकता था? क्या कोई तीसरा बच्चा इस फ्लोरीन से बनवा सकता था? तो क्या इसी बैक बॉन्डिंग को दिखाने के लिए 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते? तो आपको याद आ रही, जब एक ही मॉलिक्यूल के मोर देन 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो तो आप रेजोनेंस में आगे वापस। मैं कहूंगा मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं इसके अंदर। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 3। एक ये, एक ऐसा, और एक ऐसा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप ये बताइए इसके आधार पे कैन यू टेल मी व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीएफ बॉन्ड? बॉन्ड ऑर्डर निकालने सीखे थे, तो व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? टोटल 3 स्ट्रक्चर्स हैं और हर स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। तो बेसिकली आपको 4 बॉन्ड्स 3 एटम्स में डिवाइड करने हैं। सो व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच बीएफ बॉन्ड? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच BF bond will be 4/3, which is 1 plus 1/3. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या इस बैक बॉन्डिंग करने से कार्बन को कोई फायदा हुआ? मैं कहूंगा हाँ हुआ। कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है। क्या ऑक्सीजन को कोई फायदा हुआ? क्या ऑक्सीजन को कोई फायदा हुआ बैक बॉन्डिंग करने का? यस और नो? क्या ऑक्सीजन को बैक बॉन्डिंग करने का कोई फायदा? कुछ कह रहे यस, कुछ कह रहे यस, कुछ कह रहे नो। तो ऑक्सीजन को भी फायदा हुआ, वो फायदा दोनों को हुआ है। फायदा ये हुआ है जब ये बैक बॉन्डिंग की ना, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बन मोनोऑक्साइड? यहाँ पे कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 3। बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव हो गया।
बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों, इस बॉन्ड तो कॉमन है ना दोनों का, तो बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगी, इट ब्रिंग आउट स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब यहां भी इस बैक बॉन्डिंग के होने से यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो जब जब बैक बॉन्डिंग होगी, डिफरेंट जो बॉन्ड्स हैं उन सबका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, एंड दैट विल ब्रिंग आउट द स्टेबिलिटी, क्योंकि मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो बेसिकली अगर बैक बॉन्डिंग की मैं बात करूं, तो इसको आसान शब्दों में अगर बताऊं, तो ये वही बैक बॉन्ड है जिसको हमने कई क्लासेस पहले और कई बार अपनी केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस में एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में देखा जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड का रूप लेता है। सो बैक बॉन्डिंग इज ऑलवेज ईदर अ पी पाई or back bonding is always a p pi d pi. So we will learn about two type of the back bonding, p pi versus p pi d pi. यहाँ की बैक बॉन्डिंग कौन सी है, p pi या p pi d pi? This back bonding is of which type? It's p pi. कैसे बोला आपने p pi d pi क्यों नहीं बोला? क्योंकि none of them belongs to third period, none of them having d orbital. यहां बैक बॉन्डिंग कौन सी है, p pi। तो यहां पर अगर मैं आपको याद दिला दूं, तो जो हमने पाई बॉन्ड का लेक्चर किया था, तो हमने पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए एक ऑर्डर लिखा था, अगर आपको याद हो, क्वालिटी ऑफ पाई बॉन्ड का एक ऑर्डर लिखा था, 2p pi मोर देन समथिंग मोर देन समथिंग कुछ ऐसे करके। तो जिनको नोट कर ले, अभी बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन नोट नहीं करनी, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बस ये दो एग्जांपल नोट करो। वन, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, एंड ड्रॉ दिस, गिविंग यू ए पॉज सो दैट आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। तो मैं एक्स्ट्रा चीजें बोर्ड से हटा रहा हूं। तो वंस यू नोट डाउन, जस्ट टेक्स्ट मी। नोटेड? ओके, तो जितनी देर मैं अभी तक चुप था, मैं बस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस देख रहा था। एक बच्चे ने पूछा है क्या बैक बॉन्डिंग, आपने कहा कि पी पाई और पी पाई डी पाई होती है, क्या डी पाई भी हो सकती है? मैं कहूंगा यार नहीं होती, यूजुअली नहीं होती, कोई रेयर केस ऐसा आ गया तो पता लग जाएगा। और उसका आंसर क्यों नहीं होती, वो विद टाइम आपको कम से कम 2 क्लास बैक बॉन्डिंग के बाद समझ में आए।
तो जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि डी पाई हो सकती है, मैं अभी आंसर दे रहा हूं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, रीजन मिल जाएगा विद टाइम। उसके बाद एक जिंक महाशय है जो बार बार बोल रहे हैं नाइट्रोजन में ड्रैगोज रूल क्यों नहीं लगता, तो जिंक क्लास के बाद मेरे को कॉल कर, ड्रैगोज रूल का डिस्कशन करेंगे हम। एक और था, हाँ, एक स्टूडेंट है जिसने पूछा फ्रॉम मी नाम का स्टूडेंट है, उसने ये बोला है कि क्या हम BF3 का स्ट्रक्चर हम तो ऐसे बनाते आए थे, तो क्या अब हम BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, क्या ऐसा बना के आएंगे? तो अब आंसर सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक के जितने क्वेश्चन पूछे उसमें से यही ढंग का था। कभी भी आपने जब स्ट्रक्चर्स बनाने ना, लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर, आपने विदाउट बैक बॉन्डिंग दिखाने हमेशा। क्वेश्चन में अगर कोई कहेगा तो बैक बॉन्डिंग की तरफ दिमाग लगाना, वो भी मैं आपको हिंट दूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तब आप बैक बॉन्डिंग सोचोगे। अभी तो मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ ना व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, फिर मेरा अगला टॉपिक आएगा व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा पूछा है जिसने भी पूछा कि क्या हम अब BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे। बिल्कुल हम ऐसे ही बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे, ऐसे वाले नहीं बनाएंगे। बैक बॉन्डिंग को कभी ड्रॉ करके नहीं दिखाते, अंडरस्टूड होता है कि वहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बिल्कुल आपने ऐसे करके आना, वहां पे जरूर ऐसे दिखाना है। सो इन शॉर्ट, बाय चांस कोई आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि ये BF3 का स्ट्रक्चर है, आप हमेशा अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहोगे, आप BF3 ऐसे ही बना के आओगे। बाय चांस किसी क्वेश्चन में ऐसा स्ट्रक्चर बना बनाया आ गया, तब आपने एक्स्ट्रा अपना ब्यूटीफुल दिमाग नहीं लगाना, नहीं नहीं इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया था, बोनस कराओ, वहां किसी ने नहीं तुम्हारा बोनस सुनी। इसका मतलब अगले ने बैक बॉन्डिंग आपसे अब पूछने लगा क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ होगा वो ऐसा स्ट्रक्चर बना के आपको हिंट दे देगा। पर अब आगे ध्यान से सुनना, कंपटीशन एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्कूल एग्जाम में अगर बैक बॉन्डिंग आया तो ये 2 एग्जाम्पल ही आएंगे, इनसे बाहर नहीं आने वाला। पर अभी तक मैंने आपको जो बैक बॉन्डिंग कराई ना, बड़ी प्यारी सी 2 एग्जाम्पल सस्ते सस्ते बताए, अभी तो थोड़ा रोना बाकी है। तो अभी हम इसका एक असली वाला रूप देखते हैं, बैक बॉन्डिंग में एक्चुअली क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आगे कुछ और बात करेंगे। फिर मैं 2 दिन बाद पूछूंगा क्या हालत है, तो मैं आपको पहले बता दूं, बैक बॉन्डिंग में पहली क्लास में कंफर्ट लेवल नहीं आने वाला, अगली क्लास में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तीसरी में तो बहुत बढ़ जाएगा। चलो मैं इरेज करने लगा हूं। अब देखो, ये एक इजी सा रूप था। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाने लगा ना वो ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट ये है यार, समरी ये है एक्चुअल में, अगर किसी एटम के 2 एटम के बीच में बॉन्ड है ना, और किसी एक के पास लोन पेयर है और बी के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है, चाहे वो एम्प्टी p ऑर्बिटल हो और एम्प्टी d ऑर्बिटल हो, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में जाने नहीं देते। यदि किसी 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड है, एंड मैक्सिमम केसेस में सिंगल बॉन्ड, तो अगर कंडीशन ऐसी फुलफिल हुई कि किसी एक एटम पे लोन पेयर और उसके साथ वाले पड़ोसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल p भी हो सकता है d भी हो सकता है, तब तब आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए बैक बॉन्डिंग की। क्योंकि बैक बॉन्डिंग में होता क्या है, जिस ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उसको मैं बोल रहा हूं फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड।
जहां 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये वाला ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है वो कहता कि मैं इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना चाहता हूं। लेकिन ये पाई बॉन्ड तो हमने ऐसा पढ़ा था, जब 2 ऑर्बिटल हो, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इनमें पाई बॉन्ड बन जाए। क्या हो अगर 2 ऑर्बिटल पैरेलल हो गए और यहां इलेक्ट्रॉन 2 है, ये खाली है। तो ऐसे केस में ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और पाई बॉन्ड एंजॉय करेगा। हमने नॉर्मल पाई बॉन्ड ऐसा पढ़ा है, जब 2 ऑर्बिटल पैरेलल और पैरेलल ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक दूसरे को हेलो हाई करते हैं। और ऑब्वियसली यहां पे मैं डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑपोजिट दिखाऊंगा। ये स्टूडेंट ने सही पकड़ा, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। वैसे वैसे ये मैटर नहीं करता, पाई बॉन्ड के केस में हम कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते, सेम स्पिन भी दिखा दोगे ना, कोई नहीं कुछ कहता। सिग्मा बॉन्ड में जरूरी होता है। अब ध्यान से समझना अपने क्वेश्चन टाइप करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट पॉइंट ना सुन लेना, मैं थोड़ी देर के लिए आपको चैट ऑफ करके ही पढ़ाऊंगा। चलो देखो, अगर सपोज करो मैंने 2 एटम्स के बीच में, फिर से चैट ऑन, यार तुम कर क्या रहे हो? स्टिल देयर इज ए, बंद ही नहीं हो रही अब तो। कोई सेटिंग करवा दी तुम लोगों ने? अच्छा चलो ठीक है, सिस्टम हैक। चलो ठीक है, अगर किसी एटम के ऊपर एक लोन पेयर हो और उसका बॉन्ड जिस एटम के साथ बना उससे खाली ऑर्बिटल, कंडीशन है खाली, तो ऐसे केस में फुली फिल्ड ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगा और फिर ये पाई बॉन्ड एंजॉय करेगा। दिस इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में हमेशा 2 ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा और एक ऑर्बिटल खाली होगा। अब आप मुझे ये चीज बताओ, जब एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और उनके बीच में पाई बॉन्ड है, तो ऐसे केस में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की निशानी हुई या सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की निशानी हुई? क्योंकि कंट्रीब्यूट तो कोई एक ही कर रहा है, कंट्रीब्यूशन तो एक ही की तरफ से है। डेफिनेशन क्या थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 ऑर्बिटल हिस्सा ले, एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा खाली हो। तो यहां इलेक्ट्रॉन दोनों इसके हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज भी हो सकते हैं। क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग होती है बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें है या इसमें है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। बेसिकली तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें है, जब शेयरिंग हो गई दोनों में, अब तो वो दोनों के कॉमन गिने जाएंगे, तो ये मैटर ही नहीं करता कि वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में किसका है। बट आपको पता होना चाहिए एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। दिस इज द एक्चुअली बैक बॉन्डिंग। तो जिन बच्चों ने ये पूछा था कि बैक बॉन्डिंग हमें हम कॉपी में लिखें क्या, हम यहाँ डेफिनेशन अब लिखते हैं, इट इज अ पाई बॉन्ड formed by overlapping of fully filled orbital of an atom with empty p or d orbital of another atom bonded to it।
किसी एक एटम का फुली फिल्ड ऑर्बिटल उस एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करे जो आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर बी के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्या उसकी कोई कंडीशन होगी? हाँ, दो कंडीशन होगी। कब पता लगेगा कि किसी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? वो दो हरकतों में हो सकता है। वो दो कंडीशंस क्या है? When an atom will have empty orbital on it, तो आंसर इज देयर आर टू कंडीशंस। कब कब बी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा? ईदर बी एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड with incomplete octet, or B atom belongs to third, fourth, fifth, sixth, or seventh period and have empty d orbitals. Or p orbitals. इनफैक्ट p ऑर्बिटल रहने दो। ये कंडीशन अच्छे से समझनी है। मैंने क्या लिखा? बी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल दो कंडीशन में हो सकता है। अगर बी सेकेंड पीरियड का हो तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तभी होगा अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल, मान लो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। तो सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दी बेरिलियम फ्लोराइड। तो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो बेरिलियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया दो बॉन्ड बनाने के लिए, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में चले गए और ये दोनों एम्प्टी हो गए। और यहां बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं और आपकी नजरों में बेरिलियम हाइपोवेलेंट है। तो सेकेंड पीरियड का बंदा जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ दिखेगा तभी उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे हमेशा। चाहे आप BF3 ले लो, चाहे आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, जब जब बी एटम जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो तभी उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। सो सेकेंड पीरियड एलिमेंट with incomplete octet will always have empty orbital on it. अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड की अगर मैं बात करूं, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। वो चाहे उनके पास ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, हाइपरवेलेंट हो, उनके पास हमेशा ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए उनके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल की कंडीशन ऑक्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे वो हाइपोवेलेंट होंगे, तभी उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा। और अगर वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड के होंगे तो ऑक्टेट चाहे कंप्लीट हो, चाहे ऑक्टेट रिच हो, चाहे ऑक्टेट 8 के बराबर या 8 से ज्यादा हो, 8 से कम हो गए वैसे रेयरली पॉसिबल होता है, तो वैसे ही उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड वालों के लिए परवाह नहीं करनी ऑक्टेट की। सेकेंड पीरियड वालों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली हम बात करेंगे कि भाई उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी बेरिलियम की, बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड वाले के पास यहाँ 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
तो अब आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम में देखोगे तो आप देखोगे कि इसके p ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल है जो खाली है, क्योंकि ये दोनों तो सिग्मा बॉन्ड बनाने जाएंगे। अगर मैं यही एक और एग्जांपल आपके सामने रख दूं, let's take an I'm giving you example of, let's say I'm talking of carbon which is bonded with 2 fluorine and has 1 lone pair। अगर मैं यहां बात करूं कार्बन की, तो लेट्स से दिस इज लोन पेयर 1 sigma 2 sigma 3 sigma and this is carbon is suppose sp2 hybridized। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, octet incomplete and carbon belongs to second period। तो अब आप अगर कार्बन की ऑर्बिटल देखोगे 1s2 2s2 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, p में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये 3 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल बच गया। तो सेकंड पीरियड का जब भी कोई एटम हाइपोवेलेंट दिखेगा, उसके पास डेफिनेटली एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पीरियड का है, लाइक सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सिलेनियम, उनका ऑक्टेट कंप्लीट भी अगर होगा तो उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल डी वाले तो हमेशा होते हैं। तो बी की कंडीशन आपको समझ में आ रहा है। अब इस ओवरलैपिंग के होने की कंडीशन मैंने अभी क्या बताई कि एक एटम के ऊपर फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो एम्प्टी ऑर्बिटल की कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब जो मैंने एग्जांपल आपसे अभी BF3 वाला शेयर किया था एग्जांपल, क्या आप यहां पर ये देख सकते थे बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर चलूं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन था। 3 बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवाया, और क्योंकि बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक s और 2 p ऑर्बिटल ने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, तो एक p ऑर्बिटल एम्प्टी बचा। और कुछ दिन पहले वेकेशन पीरियड से पहले वाली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद है। मैंने कहा था अगर ये 2s ऑर्बिटल है, अगर ये 2px है, ये 2py है, तो ये 2pz है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रही है, तो मैं कहूंगा कि ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ये 3 सिग्मा बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में होंगे। अगर आपको याद हो कि अगर आपने यहाँ py pz लिया, तो मैं कहूंगा सिग्मा बॉन्ड्स yz प्लेन में होंगे। अगर xy है तो px, तो ये xy प्लेन में होंगे, अगर आपने px py को हाइब्रिडाइजेशन में भेजा। तो ये तो श्योर है कि जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा वो हमेशा इस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर xy प्लेन में ये सिग्मा बॉन्ड है तो फिर pz बच गया, एंड z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन। तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल को मैं हमेशा ऐसे दिखाऊंगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। और आप ये देख सकते हो कि फ्लोरीन के ये जो 3 लोन पेयर है, एक 2s ऑर्बिटल में होगा, एक 2p ऑर्बिटल में, और ये दूसरा भी 2p ऑर्बिटल में। अब
हमेशा कोई ना कोई फ्लोरीन का ये जो लोन पेयर होगा, ये एक ऐसे p ऑर्बिटल में रहेगा जो p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के पैरेलल आ जाए, क्योंकि फ्लोरीन को जब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाना है, तो ये लोन पेयर डेफिनेटली उस प्लेन के अंदर होगा, उस एक्सेस पे होगा कि वो बोरॉन के एंटी ऑर्बिटल के पैरेलल आ जाए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज के एक पैरेलल ओवरलैपिंग करवाएगा, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। यानी कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल थे, फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर वाला फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ जो 3 लोन पेयर हैं उसमें से एक ही लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में हो सकता था जो ऑर्बिटल इसके पैरेलल हो। इसका मतलब मैंने आपको एक मैसेज दिया कि यदि किसी एटम के ऊपर मोर देन 1 लोन पेयर होंगे तो एट ए टाइम वो सामने वाले एटम के किसी एम्प्टी ऑर्बिटल के पैरेलल अपना एक ऑर्बिटल ही खड़ा कर पाएगा, उसके दूसरे ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर ए ने बी के साथ पाई बॉन्ड बनाना है, बैक बॉन्ड बनाना है, तो एट ए टाइम इसके अगर डी ऑर्बिटल के पैरेलल इसका कोई एक पी ऑर्बिटल ही होगा, तो दूसरा पी ऑर्बिटल नहीं होगा फिर। यानी कि 2 लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर ही बैक बॉन्डिंग का सुख भोगेगा। सो बैक बॉन्डिंग कब कब होगी? जब जब कभी 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा था हमें, और उसमें एक के ऊपर फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो ऐसे केस में यहां बैक बॉन्डिंग होगी। अब अगर ये एटम सेकेंड पीरियड का है और सेकेंड पीरियड के एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो गारंटेडली उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। और अगर ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग का एंजॉय डेफिनेटली करेंगे, लाइक जैसे आपने BF3 में देखा। इसलिए अगर कोई आपसे ये कह दे क्या बेरिलियम फ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, सॉरी, तो आप ये बोलोगे कि बेरिलियम के पास 2p ऑर्बिटल है एम्प्टी, चेक करके जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा भी था। तो अगर कोई आपसे कह दे कि बेरिलियम के पास 2p ऑर्बिटल है, लाइक 1p ऑर्बिटल एंड अनदर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, तो आप ये समझ सकते हो कि इस फ्लोरीन के ऊपर अगर एक लोन पेयर इसके पैरेलल आ जाए फुली फिल्ड बैक बॉन्डिंग करने, तो इसके पास भी तो एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो इसके साथ पैरेलल हो जाए। तो वापस से वही स्टोरी आ गई, जब किसी एटम के ऊपर दोनों तरफ से पाई बॉन्ड आ रहा हो तो दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं आ सकते, जो हमने कुछ दिन पहले एलीन का केस देखा था। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि व्हाई द 2 पाई बॉन्ड्स कैन नॉट बी इन द सेम प्लेन। बट वो एक अलग बात है कि क्या ऐसे 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। इस फ्लोरीन के पास भी फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, बेरिलियम पे भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, इस फ्लोरीन पे भी फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इस पे भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। बट हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं एक बार अगर बैक बॉन्डिंग हो गई इस तरफ से, दूसरी बार बैक बॉन्डिंग करने में अड़चन आएगी। यानी कि अगर इधर से एक बैक बॉन्डिंग हो गई, इधर से करने में बेरिलियम नाराजगी दिखाएगा। क्यों? आप खुद ही बता दो। अगर इसने बैक बॉन्डिंग की तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? फॉर्मल चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देने, इसने भी इसे इलेक्ट्रॉन देने, तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं बन गया सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टाइप वाला, कि अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दूसरा कहेगा मैं भी भेज रहा हूं, पर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से रिपल्शन वाली टेंडेंसीज हमेशा आ जाएंगी। इसलिए अच्छी बैक बॉन्डिंग हमेशा एक ही काम की होती है, बाकी टाइप की बैक बॉन्डिंग तो बेकार टाइप के रहते हैं। सो बेसिकली मुझे आपको ये चीज इंट्रोड्यूस करवाना था, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दीज एग्जांपल्स। बट डेफिनेटली हम जो अपने क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे, उसमें अब हम पी पाई डी पाई टाइप बैक बॉन्डिंग देखेंगे। आई थिंक टाइम हो चुका है। हाँ
अभी वैसे मेरे पास 10 मिनट्स हैं, लेट मी कंप्लीट, मुझे एक और एग्जांपल देने दो। One last example for p pi d pi type back bonding. Let's give me example of trisilylamine, and this question is very important. बच्चों, ऑर्गेनिक में आपने इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम किया होगा। कैन यू टेल मी द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस? कुछ आईयूपीएसी नेमिंग की थी इसकी? दिस इज ट्राइमिथाइलएमीन, राइट? या मैं ऐसे बोल दूं एन डाइमिथाइल मिथेनामीन। आईयूपीएसी में यही किया होता है, एन डाइमिथाइल मिथेनामीन या फिर ट्राइमिथाइल एमीन। और अगर मैं यहां बात करूं, नाइट्रोजन के अराउंड मैंने कार्बन हटा के सिलिकॉन लगा दिया। सिलिकॉन लगा दिया और इस पे रख दिया एक लोन पेयर। अब आप चेक करके बताओ, क्या नाइट्रोजन एक ए एटम है जिसपे लोन पेयर है, और सिलिकॉन बी एटम है जो थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड वालों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर मैं यहां वेकेंट डी ऑर्बिटल की बात करूं और नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर बैठा है, तो ये लोन पेयर इसके साथ अब बैक बॉन्डिंग में जाएगा। और अगर इस लोन पेयर ने इसके साथ बैक बॉन्डिंग की, इसका मतलब ये लोन पेयर कह रहा है मेरे को सिग्मा मत काउंट करो। मैंने अगर आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी होती, आप ऐसा करते 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर कह रहा मैं सिग्मा बॉन्ड में नहीं जा रहा, मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं करूंगा, सामने मेरे को डी ऑर्बिटल दिख गया, मैं जा रहा हूं पाई बॉन्ड बनाने। तो ये लोन पेयर इस डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग में जाता है। नाइट्रोजन खुश है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसको जैसे ही देखा सिलिकॉन, उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने कहा सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है, वाओ, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा, ओके आई एम गोइंग इन बैक बॉन्डिंग। और अगर वो बैक बॉन्डिंग में जाएगा, तो अब आप बोलोगे ये लोन पेयर पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, इज इन दिस केस पी पाई डी पाई। तो अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो आप उसको सिग्मा में काउंट नहीं कर सकते, आप उसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं कर सकते। आप कहोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, नो सिग्मा। So nitrogen की hybridization will not be counted as sp3. This nitrogen will be counted as sp2. So basically here lone pair on nitrogen will remain in the pure orbital to overlap with empty d orbital on silicon, forming p pi d pi bond, which is back bonding. और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 स्टेरिक नंबर के हिसाब से नाइट्रोजन इन ट्राइसाइलाइलएमीन will remain in sp2. अब मुझे एक चीज ये बताओ,
सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, नाइट्रोजन को क्या जरूरत थी बैक बॉन्डिंग की, सिलिकॉन की क्या जरूरत थी बैक बॉन्डिंग की, क्यों यहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई? यहाँ पे तो समझ में आया कि बोरॉन को जरूरत थी, तो उसका बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है यार। ध्यान से सुनना, क्या फायदा दिख रहा है? सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये बताओ, जब ये लोन पेयर आपने पाई बॉन्ड बनाने भेज दिया, तो अब ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर बन चुका है। ध्यान से सुनना भाई साहब, अगर ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाता है तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर गिना जाएगा, वो भी डबल बॉन्ड लाइक पाई बॉन्ड। तो मेरा सवाल ये है आपसे, अगर नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर नहीं गिना जाएगा बॉन्ड पेयर की तरह, तो इस नाइट्रोजन के अराउंड ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं वो कौन सी ज्योमेट्री अपनी अडॉप्ट कर लेंगे? कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और अगर ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग ना करता और आपके हिसाब से ये हाइब्रिडाइजेशन में रहता, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता हुआ पिरामिडल ज्योमेट्री में आता, और पिरामिडल ज्योमेट्री का एंगल 109 से कम होता। तो भाई मेरे ये बताओ, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहां ज्यादा होती, 109 में या 120 में? ऑब्वियसली 120 में कम होती रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन 120 में कम है। दूसरी चीज, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी घट गई। दूसरी चीज, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर भी इंप्रूव हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? ये लोन पेयर अगर इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो यहां पर तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंप्रूव हो रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कम हो रहे हैं। क्यों जबरदस्ती हाइब्रिडाइजेशन में भेज रहे हो? इसलिए अगर कोई ये कह दे कि भाई यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई, मैं कहूंगा उससे 2 फायदे हो रहे थे। एक तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा था, और दूसरी चीज यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन घट जाएगा जब ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। एंड ट्राइगोनल प्लेनर is having 120 degree angle as compared to pyramidal geometry. तो अब मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल थी? ध्यान से सुनना, क्लाइमेक्स देके छोड़ूंगा क्लास। क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कार्बन के साथ है? क्या कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है? नहीं है। क्या कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? नहीं है। बैक बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लोन पेयर कहेगा मैं हाइब्रिडाइजेशन में जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना बैक बॉन्डिंग में। तो यहाँ के लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट कर लिया जाएगा। तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा तो वो लोन पेयर की तरह गिना जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहेगा, पिरामिडल ज्योमेट्री में रहेगा, बॉन्ड एंगल 109 से कम रहेगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे यहाँ का नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप बोलोगे sp3। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3? नो, इट्स sp2। इसलिए अब से ऑनवर्ड वाली क्लासेस में मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमें कैसे पता चलेगा, कोई एग्जांपल देके, यहाँ लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजना है या स्टेरिक नंबर में काउंट करना है? सो दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। यहाँ पे जाके केमिकल बॉन्डिंग एक नया मोड़ पे जाएगा, जहां पर हम ये देखेंगे कि लोन पेयर को कब बैक बॉन्डिंग में भेजना है और कब नहीं भेजना है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग and I will be looking forward to get your calls or the doubts. Thank you so much.